صبح سے پہلے رات کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ غور سے سنو کہ کل صبح نماز کے بعد میں مصطفیٰ ایک ایسے شخص کو اسلام کا جھنڈا دوں گا، ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر راضی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کبھی بھی میری زندگی کے اندر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے مسلمانوں کا امیر بنایا جائے، کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی، مگر جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کلمات سنے میں نے، کون سے؟ فرمایا اس کو دوں گا جو اللہ سے راضی ہے، اللہ کے رسول سے راضی ہے، جس پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بھی دل میں خواہش کی مالک وہ عمر ہو جائے، مگر جب صبح ہوتی ہے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہر دل دھڑک رہا ہے، ہر دل دھڑک رہا ہے کہ مصطفیٰ کا منتخب کون ہوگا، مصطفیٰ کا انتخاب کون ہے، ہر کسی کی خواہش ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری بھی خواہش تھی کہ آج آقا مجھے میرا انتخاب فرما لیں۔ فرماتے ہیں جب دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاروں طرف دیکھا، اپنے صحابہ کو دیکھا، ہر صحابی میرے آقا کی ناموس پر اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا این علی، کہ علی کہاں ہے؟ جو انتخاب تھا وہ موجود نہیں، جن کو چننا تھا وہ موجود نہیں، فرمایا علی نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علی کی آنکھیں تھوڑی سی خراب ہو گئی ہیں، آنکھوں کی بیماری ہے، اسی وجہ سے وہ آج نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلاؤ، جب نوازنے پہ آتے ہیں تو ایسے نوازتے ہیں، جب نوازنے پہ آتے ہیں تو ایسے نوازتے ہیں، فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی آ گئے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، لال ہیں، پانی بہہ رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آ کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری تو طبیعت ہی خراب ہے۔ آج کوئی بڑا جرنیل ہو، اپنے آگے کوئی اپنے سے بڑے جرنیل کو دیکھ لے تو وہ پہلے بہانہ کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو میں تو بیمار ہو گیا ہوں، مقابلے کے لیے نہ بھیج دیں، میں تو بیمار ہو گیا ہوں، نہیں میری تو کڈنی کا مسئلہ ہے، ہزاروں مسئلے نکال لیتے ہیں، مگر امام علی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے انتخاب پر خوش ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ادھر آؤ علی۔ حضرت علی جاتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں آنکھوں میں، فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ آقا کا کرم، آقا کا کرم دیکھیے۔ پھر فرمایا علی یہ اسلام کا جھنڈا ہے، تمہیں دے رہے ہیں اور تم نے اس کو فتح کر کے آنا ہے۔ حضرت علی فرماتے جب نکلے جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی بغیر ڈرا کے چلے گئے۔ جو فوجی سامان تھا اپنی حفاظت کے لیے جو پہنا جاتا ہے تاکہ کوئی تیر نہ لگے، کوئی وار نہ کر سکے، لوہے کی درع ہوتی ہے وہ پہنی جاتی ہے، حضرت علی اس کے بغیر چلے گئے۔ پوچھا علی خیریت تو ہے؟ کیوں؟ حفاظتی تدابیر اپنا لو، دشمن ہے۔ مگر امام علی کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا تم نے فتح کرنا ہے تو آج مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ یہ ہے مصطفیٰ کے دیوانے، یہ ہے مصطفیٰ کے چاہنے والے۔ آج مجھے اور آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو موت آ جاتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں مصطفیٰ سے محبت ہے،
फरमाया ज़कात देनी है तो पहली फुर्सत में अपने आप को ऐसा लिखवा देते हैं कि ज़कात लागू ही ना हो। हाँ, फिर भी अली से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत का दावा है। सैयदना इमाम अली को देखिए, नमाज की बात आई, कभी नमाज कज़ा ना हुई। एक वक्त में मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली की गोद में सर रख कर आराम फरमा रहे हैं। जिसकी गोद में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर हो, उसको क्या ज़रूरत थी गम खाने की। मगर जैसे देखा सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज गुरूब होने वाला है, हज़रत अली की आंखों में से आंसू हैं। किस लिए चाहते हैं आज हम अली के नाम लेने वाले, अली से मोहब्बत करने वाले, आज हम एक इमाम अली की महफिल में बैठी हूँ तो नमाज़ें भूल जाती हैं। हैं? एक महफिल में शरीक हो जाए, समझते हैं हमने अपने आप को माफ़ करा लिया। इमाम अली की गोद में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर मुबारक रख कर आराम फरमा रहे हैं, अस्र की नमाज कज़ा हो रही है। सैयदना इमाम अली के बेइख्तियार आंसू निकले, आंखों में आंसू हैं। आंसू आका के चेहरा मुबारक पर जाते हैं। आप अपनी आंख मुबारक को खोलते हैं, फरमाते हैं अली क्या बात है, दोनों जहानों का सरदार तेरी गोदी में आराम फरमा रहा है, फिर भी रो रहा है तो? हैं? फिर भी रो रहे हैं। हज़रत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, गौर कीजिए, अली का नाम लेने वाले फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जब से नमाज फ़र्ज हुई है अली की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई, आज की नमाज कज़ा हो रही है। अली को दुख है कि कहीं मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। हैं? हैं? अली के नाम का नारा लगा के भंग के 2-4 गिलास चढ़ा के पड़े हैं, कोई पता नहीं है कि नमाज भी किसी चीज़ का नाम है। मगर अली आका गोद में है, गौर कीजिए, मंजर देखिए, मगर अली की आंखों में आंसू हैं। या रसूल अल्लाह मुझे खौफ है रब के डर से, जिस रब से आपने डराया है कि एक नमाज के कज़ा करने पर इतना अजाब होता है, इसीलिए खौफ से कांप गए, रब के खौफ से कि कहीं मुझसे रब पूछेगा, क्या कहूँगा, ये हुज्जत पेश करूँगा मेरा नबी मेरी गोदी के अंदर था। मैं नहीं, ये तो रब की दी हुई सआदत है, करम है उसका, उसने अता किया है। मगर नमाज की बारी है, मेरे आका ने भी फिर लजपाल थे। हैं? आका भी तो लजपाल थे। फरमाया अच्छा अली ये बताओ, जब देखा ना कि तड़प इतनी है, तड़प ऐसी है, रो रहा है, आंखों में से आंसू बेइख्तियार जा रहे हैं, पूछा अच्छा अली ये बताओ कभी कज़ा नहीं हुई, आज कज़ा पढ़ोगे अभी या अदा पढ़ने का मूड है? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अगर अली भी तो थे, अली तो मेरे आका की एक एक बात को समझने वाले थे, आका की एक एक बात पर जान लुटाने वाले थे। उन्होंने कहा आज फिर कायनात को दिखा दिया जाए कि कौन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और कौन अली अल मुर्तज़ा हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक नमाज कज़ा नहीं हुई। करम फरमाते हैं तो आज भी अदा ही, और आपकी इक्तदा में हो जाए, अदा हो आपकी इक्तदा में हो। कुर्बान जाऊँ, मेरे आका ने करम फरमाया, आपने शहादत वाली उंगली उठाई, सूरज की तरफ लेकर गया। जिस तरह से हम किसी छोटे से स्पॉट को पकड़कर उंगली से हिलाकर जहां दिल करता है वहां रख देते हैं, जैसे बटन को या किसी चीज़ को
किसी की को अपने हाथ से मूव करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह से सूरज की तरफ इशारा किया। जैसे जैसे मेरे आका की उंगली मुबारक चलती रही, सूरज भी आता रहा, सूरज भी आता रहा। हैं, आपने असर के मकाम पर ला दिया, फरमाया आली फिर पढ़ो अदा। हैं, सूरज, गौर कीजिए, कोई आम ये मोजज़ा नहीं था, आम मोजज़ा नहीं है। जिस दिन सूरज उल्टा आना शुरू हो गया, उसी दिन का नाम कियामत है। हैं, गौर करें, जिस दिन सूरज अब तो मशरिक से निकलकर मगरिब की तरफ जाता है, जिस दिन मगरिब से वापस हो गया, उसी दिन कियामत है। मगर कुर्बान जाऊं मेरे आका की शान पर, हाँ, उंगली मुबारक से सूरज को मगरिब से लेकर अशर पर पहुंचा दिया। दुनिया का निज़ाम भी वैसे चलता रहा, अली ने नमाज भी अदा कर दी और लोग देखते रह गए, हैरान हो गए, ये आज क्या हो गया है कि मगरिब से सूरज निकल रहा है। लोगों को फिर बताया गया, अरे ये तुम्हें नहीं पता, लाने वाला मुस्तफ़ा है, इसका सबब अली उल मुर्तज़ा है। हाँ, ये वो अली थे, वो इमाम अली। एक जंग के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गौर कीजिएगा, ये जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ आम तौर पर लोग नहीं करते, पता नहीं क्या बात है। आता है अमर बिन अब्द वुद, मुशरिकीन का ये सरदार था, जिसने मुशरिकीन का झंडा पकड़ा हुआ था, और उनमें सबसे खतरनाक जंगजू था। कितना जंगजू था, कितना खतरनाक जंगजू था, इस वाक्य में आ रहा है तो कितना खतरनाक था। कहते हैं वो निकला, अपनी लश्कर से बाहर आया, कहता क्या है, कौन है मेरा मुकाबला करेगा। क्या कहता है, कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा। जैसे उसने आवाज़ लगाई, सैयदना इमाम अली उठे, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना लहू, आका मैं इसके लिए काफ़ी हूँ, करम फरमाइए, मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, फरमाया नौजवान हैं, वो जंगजू मशहूर तरीन, जैसे उसने आवाज़ लगाई, सैयदना इमाम अली उठते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं हूँ, इसके लिए काफ़ी हूँ, करम फरमाए, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं इजलिस, अली बैठ जाओ। वो अमर बिन अब्द वुद, ये बहुत बड़ा जंगजू है। फिर वो दोबारा कहता है, दोबारा आवाज़ लगाता है, आप देखिए दोबारा आवाज़ लगाता है, कहता क्या है, कौन मेरा मुकाबला करेगा। सैयदना अली फिर उठते हैं, या